हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। अभी तक जो हमने एबीसी करा था मैम, वो एमए में भी करा था, लेकिन जो ये कंसेप्ट है ये आपने एमए में नहीं करा है। तो आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा चीजें समझनी पड़ेगी। आई विल गिव यू ओनली वन टीवायू एज होमवर्क आफ्टर दिस पर्टिकुलर पार्ट। Rest of it I have solved for you. Rest of it I am trying to make your life easier. Ma'am, is your video enough? Is TYU enough? Is study text enough? Is exam kit enough? Okay, so guys, as I have been repeating this thing again and again, that my videos are not substitute of study text. You will have to read it. You will have to invest your time. You will have to understand. You will have to practice the questions from your end. You cannot be like, okay, I have watched my ma'am's video and now I will sit in the exam directly. No, I have tried to make your life easier. I have not tried to eliminate any sort of hard work that is required from your end. Okay, so before I move on to the throughput accounting, before I introduce you that particular concept, I would like to introduce you first two concepts on which this whole concept is based on. This is the core, this is the background of this particular concept. Okay, ma'am, is it useful in the coming chapters? Yes, we will be doing just an inventory in the coming chapters also. But today I will give you a small gist, I will give you a small hint, I will give you the reason as to why I am introducing this topic into this particular concept. Okay, so guys, the first two concepts that I am talking about is TQM and JIT. So first is TQM, that is quality, total quality management. अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिंपली क्या कहता है कि मैम, चाहे आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या चाहे आप सर्विस दे रहे हो, राइट, इट हैज टू बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, इट हैज टू बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल मैम, अगर आज आप सैलून जाते हो मेडिक्योर पेडिक्योर करवाने, तो ऑब्वियसली आप अपनी वहां पे टेंशन रिलीज करने चाहते हो, आप रिलैक्स करने चाहते हो। यू वांट द बेस्ट सर्विस। डू यू वांट योर एक्सपीरियंस टू बी बैड? डू यू वांट कि मैम मैंने 2,000 रुपए तो दिए लेकिन बर्बाद हो गए, लेकिन बर्बाद हो गए? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। Similarly, if you buy classes from RG Institute, would you like to buy the classes कि मैम नहीं, आपने तो मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट? तो वहां पे that is the focus, TQM, that I provide you with the best classes, best experience, best memories of AA classes. Okay, so मैम, ये जो TQM का कंसेप्ट है, ये ना कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड है, कुछ फीचर्स है इसके। क्या? कि आप एरर्स प्रिवेंट करो बिफोर दे अकर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं किसी बच्चे को नोट्स देती हूँ तो मैं सबसे पहले खुद रीड करती हूँ कि भाई अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर एरर है, कोई कंसेप्ट रह गया तो मुझे पता चल जाए, तो मुझे पता चल जाए। सो आई प्रिवेंट एरर बिफोर दे अकर, एज इन कि मैम कोई बच्चा उसे पढ़ के पेपर में स्यापे करके आए, इससे अच्छा है कि पहले मैं प्रिवेंट कर लूं, पहले मैं प्रिवेंट कर लूं, राइट? Second is the importance of total quality in the design of system and products. What do I mean by this? कि मैम, मेरा प्रोडक्ट का डिजाइन एंड उसका सिस्टम इतना बढ़िया है कि आपको मजा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आरजी से क्लासेस लेते हो मैम, उसका ऐप इंटरफेस बहुत अच्छा है, राइट? तो इंटरफेस उसका बहुत अच्छा है, इजीली क्लासेस दिखती है, इजीली नोट्स डाउनलोड हो जाते हैं, सब कुछ। मैम, आप अपना प्रमोशन क्यों करने पे तुले हुए हो? नहीं गाइस, आई एम नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रमोशन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। ओके, then real participation of all employees. Now let's say I have a team of marketing, IT team, right, human resource. So in my company everybody is participating to provide you with that experience. It's not just कि मैम सारा दिन रुचि ही काम करती है, सिर्फ एक ही बंदा काम कर रहा है। तो guys, you will not be able to reach to that particular point where you are providing the best quality service. Your all employees have to participate, have to come up with ideas, have to work for a common goal. Then only you will be able to serve that best quality. Okay, then commitment of the senior management. Let's say I have 3 people इन माई टीम ABC, मैं उनकी ओनर हूं, मैं उनको चला रही हूं, मैं उनके मैं उन्हें एम्प्लॉय किया हुआ है,
मैं उन्हें सैलरी दे रही हूँ, राइट, मैं मेजर डिसीजन कर रही हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा एटीट्यूड ही ऐसी होगा, अरे छोड़ो ना, क्या करोगे इतनी मेहनत करके, अरे छोड़ो ना, वेकेशन पे जाओ, will my organization succeed? Will I be able to create better service? No. So the top management has to be committed, has to actually come up with the best solution, come up with the best decisions. Then only we will be able to serve TQM, then only we will be able to follow TQM, then only we will be able to provide the best quality service. Right? Everybody got it? Everybody got it? Okay. Then comes the just in time. So guys, अगर आप लोग शार्क टैंक देखते हो तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स आती है, स्पेशली द फैशन इंडस्ट्री, कि आपकी इन्वेंटरी तो बचती होगी, आपकी इन्वेंटरी तो वेस्ट जाती होगी, आपकी इन्वेंटरी लेट्स से एफएमसीजी की इंडस्ट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड, रॉ मटेरियल, तो हर बंदा, हर शार्क इन्वेंटरी से बहुत डरता है। क्यों? क्योंकि फैशन में वो बहुत जल्दी पुरानी हो जाएगी, एफएमसीजी में वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। सो टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर इशू, टू अवॉइड दिस इन्वेंटरी इशू, टू अवॉइड दिस वेस्टेज, टू अवॉइड कि भाई हमारा पैसा इन्वेंटरी में फंसा हुआ है, हम जिंदगी में कुछ बढ़ नहीं पा रहे, तो हमने एक कंसेप्ट लाया, दैट इज जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, ओके। जस्ट इन टाइम क्या है? एक पुल बेस्ड सिस्टम है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? कि मैम, जब अपन को लगेगा कि कस्टमर को चाहिए, तभी हम बनाएंगे, तभी हम ये बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आपको एक ब्रांड पता है, ब्लू ऑरेंज, ये टी शर्ट ब्रांड है, राइट, ये पता है क्या करता है? ये लिमिटेड स्टॉक्स निकालता है, राइट। अब लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है, ओ वो स्टॉक आउट हो जाएगा, जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो, राइट। लेट्स से अगर आपने देखा होगा, आजकल रेजन्स के फ्रेम्स चल रहे हैं, राइट, इंस्टा पे बहुत एड्स आ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों। मैं बनवा भी लूंगी, मेरे को एड सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है मुझे लगता है, ठीक है। तो अब एड्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, अब मैं ऑर्डर करूंगी तब वो बंदी मेरे लिए बनाएगी। सो व्हेन द कस्टमर नीड इट, आई विल मेक इट। I will not create everything in advance. I will not create bulk inventory, right? तो वहां पे मेरा पैसा बच जाएगा, बिकॉज पैसा मेरा रॉ मटेरियल और फिनिश्ड में स्टक होके नहीं रहेगा। जब जरूरत होगी तब बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी। सो दैट इज द जस्ट इन टाइम, दैट इज द जस्ट इन टाइम कंसेप्ट। अब इसका फायदा क्या होता है? ऑब्वियसली मैम, आपकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी, राइट, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, बिकॉज अब आप ज्यादा पैसा फंसा नहीं रहे हो इन्वेंट्री में। then your speed will become better, your flexibility, because अब आप स्मॉलर बैचेस में चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो। स्पीड, मैम कस्टमर ने मांगा चलो बनाए, कस्टमर ने मांगा चलो बनाए, ठीक है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ योर जस्ट इन टाइम, दैट इज द एडवांटेज ऑफ योर जस्ट इन टाइम। एवरीबडी गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स हियर वन मोर स्टोरी। गाइस देखो, अगर लेट्स से तुम्हारा खाना चलाने का बिजनेस है, तुम्हारा एक छोले कुलचे की दुकान है, राइट, मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि मैंने कल ही खाया है, राइट, तो मुझे और दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, मेरा पेट सिर्फ वही पुकार रहा था। ओके, सो मैंने छोले कुलचे की दुकान खोली हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी दुकान पे ज्यादा कस्टमर नहीं आते, मेरी डिमांड सबसे ज्यादा जोमेटो के थ्रू हो रही है। मैं बना के रख देती हूँ 1000 कुलचे की प्लेट, बट डिलीवरी पार्टनर्स ही नहीं है। तो गाइस, क्या ये इंटेलिजेंट डिसीजन था? क्या ये इंटेलिजेंट डिसीजन था? नहीं था। क्यों? क्योंकि मैम, आप तो बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, लास्ट में तो वेस्ट होगा, लास्ट में तो कूड़े में डालना पड़ेगा, बिकेगा नहीं तो फिर पैसे कैसे कमाओगे, राइट। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखा, क्या? कि मैम, आपका एक लिमिटिंग फैक्टर है जो आपकी सेल्स को रोक रहा है, जो आपकी सेल्स को रोक रहा है। क्या? डिलीवरी पार्टनर। क्या? डिलीवरी पार्टनर। गाइस, इस जमाने में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, राइट। मेरे पापा के पास पैसा अनलिमिटेड नहीं है, मेरे पास टाइम अनलिमिटेड नहीं है, तुम्हारे पास टाइम अनलिमिटेड नहीं है, राइट। किसी के पास कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है इस दुनिया में। रिसोर्सेस स्कार्स है, राइट, रिसोर्सेस स्कार्स है। तो सेम गोस विद द बिजनेस, कि मैम, आप अनलिमिटेड सेल्स नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ रोकेगा, आपको कुछ ना कुछ रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेसेस के थ्रू जाता है, राइट, 3 प्रोसेसेस के थ्रू जाता है।
सबसे पहले मैम उसका एक्सट्रैक्शन होता है, फिर उसका प्रोडक्शन होता है, फिर उसका पैकिंग होता है। राइट, लेट्स से ये हमारा फ्लो है, लेट्स से ये हमारा फ्लो है। ओके, तो मैम एक्सट्रैक्शन में आप 1000 यूनिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, प्रोडक्शन में आप 500 कर पाओगे, लेकिन पैकेजिंग सिर्फ 300 की कर पाओगे। रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, टाइम टाइम टाइम, पैकेज बहुत टाइम लेता है। तो गाइज, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, what is stopping you here to actually produce unlimited goods? मैम ये पैकेजिंग, पैकेजिंग वाला सिर्फ 300 कर पाएगा। राइट, सो दिस इज व्हाट इज माय लिमिटिंग फैक्टर, this is what is limiting me, this is what is scarce for me, this is what is less for me. Right, so this is your throughput, this is your bottleneck. Okay, so throughput accounting क्या कहता है कि आप अपना बॉटल नेक आइडेंटिफाई करो। बॉटल नेक आइडेंटिफाई करने का मतलब है एक ऐसी चीज जो आपको अपने गोल से रोक रही है। फॉर एग्जाम्पल मैम, मैं पीएम में 100 आउट ऑफ 100 ला सकता हूं, बट एक चीज जो मुझे रोक रही है वो है टाइम, बिकॉज मेरे पास टाइम अनलिमिटेड नहीं है। सिर्फ 3 घंटे का पेपर है, सिर्फ 2.5 महीने है प्रिपेयर करने में। सो व्हाट इज द गोल, दिस व्हाट इज स्टॉपिंग मी, व्हाट इज कार्ड इज द टाइम। सो दिस इज बॉटल नेक, दिस इज बॉटल नेक। तो गाइस, जब वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग करते थे हम, तो ऐसा कुछ फंडा नहीं होता था कि जहां पे कंपनी बॉटल नेक आइडेंटिफाई कर रही हो। बट व्हेन इट कम्स टू थ्रूपुट अकाउंटिंग, द कंपनी आइडेंटिफाइज द बॉटलनेक रिसोर्स। क्यों? क्योंकि आपको उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कार्स है, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि वो अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड, एवरीबडी अंडरस्टूड। सो फोकस, व्हाट इज द फोकस? Focus on what is limiting your sales. Focus on what is limiting your sales. Okay. Now, let's come to how to calculate throughput. मैम ये तो समझ में आ गया कि थ्रूपुट अकाउंटिंग में आप बॉटल नेक आइडेंटिफाई कर रहे हो, देख रहे हो कि आपको गोल अचीव करने से कौन रोक रहा है और आपका कौन सा स्कार्स रिसोर्स है। राइट, अब ये बताओ कि मैम थ्रूपुट निकालना कैसे है। तो गाइस, एवरीबडी नो कंट्रीब्यूशन निकलता है सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। एवरीबडी नो। अब डायरेक्ट कॉस्ट में हम लेबर कॉस्ट भी लेते हैं और मटेरियल कॉस्ट भी लेते हैं। ओके, तो थ्रूपुट यही होता है, थ्रूपुट होता है सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट। अब मैम मटेरियल कॉस्ट, ओके, नाउ गाइस हियर इज अ ट्विस्ट, हियर इज अ ट्विस्ट। व्हाट ट्विस्ट? कि मैम आप सिर्फ मटेरियल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट मानोगे और कोई कॉस्ट आपके लिए वेरिएबल नहीं है। सो दैट इज द गोल्डन रूल ऑफ थ्रूपुट, कि सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म में मटेरियल कॉस्ट ही एक वेरिएबल कॉस्ट है और कोई कॉस्ट उसके लिए वेरिएबल नहीं है। राइट, ना ही उसके लिए लेबर कॉस्ट वेरिएबल है, ना ही वेरिएबल है। मैम लेबर 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 क्यों वेरिएबल नहीं है? क्योंकि थ्रूपुट के अकॉर्डिंग मानना है कि भाई देखो, हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, राइट, और अगर तुम्हें पर यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं तो तुम्हारा वीकली वेज फिक्स तो है, वीकली वेज फिक्स तो है, गारंटी तो है। राइट, सो हेयर व्हाट आई एम सेइंग, that only cost which is variable is my material cost, is my material cost. Okay, so throughput is also the measure of profitability. Right, जितना आप throughput बढ़ाओगे उतना बेटर रहेगा, उतना बेटर रहेगा। राइट, सो एट द एंड ऑफ द डे मेरे बिजनेस का एम क्या है? प्रॉफिट बढ़ाना। और ये प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जब मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होंगे और मेरी इन्वेंटरी में जो कैश फंसा हुआ है वो कम होगा, वो कम होगा। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर टिल हियर? एवरीबडी क्लियर टिल हियर? अब बच्चों को लगता है कि मैम आपने ये वर्ड क्यों यूज किया शॉर्ट टर्म। गाइस देखो, अगर आपका पैकिंग डिपार्टमेंट 300 यूनिट्स पे रुका हुआ है, तो आप शॉर्ट टर्म में एक सॉल्यूशन देख लो कि आप असेंबली डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को पैकेजिंग में ले आओ। Right, that will resolve your issue to a certain extent, to a short term duration. But in the long run, in the long run,
आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी इन द लॉन्ग रन। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बॉटल नेक को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, राइट? दैट इज द ओनली सॉल्यूशन कि आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। सो व्हाट इज द assumption that I'm talking about? Only material cost is considered labor, considered variable. Rest is all fixed. Rest is all fixed. So what is the goal? The goal is to maximize the throughput. How? By reducing the operating expense and by reducing the inventory में जो कैश फंसा हुआ है। Now guys comes the very 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 important concept, and this concept is the most important in today's lecture. अगर आपको ये समझ में आ गया तो टेबल पे खड़े होके बल्ले बल्ले कर लेना, ठीक है ना? What is this five step approach? This is known as theory of constraints. Theory of constraint क्या कहता है ये कि मैम सबसे पहले आप अपना बॉटल नेक आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले जिंदगी में क्या दिक्कत चल रही है वो जड़ से निकालो, राइट? कैसे मैम? आपकी जिंदगी में आपके लिए पैसे प्रॉब्लम है, दैट इज माई बॉटल नेक, दैट इज माई मनी इज माई बॉटल नेक। मैम टाइम इज माई बॉटल नेक, माई रिसोर्सेज इज माई बॉटल नेक, राइट? सो व्हाट इज द बॉटल नेक? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पूरा एग्जाम्पल देके ये फाइव स्टेप अप्रोच समझाऊंगी। अभी सिर्फ स्टेप्स देखो, अभी सिर्फ फाइव स्टेप्स देखो, राइट? मैंने कहा मैम देखो क्या आपको रोक रहा है जिंदगी में, क्या आपको रोक रहा है, फिर आप उसे एक्सप्लॉइट करो। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? कि उसका बेस्ट यूज करो। शॉर्ट टर्म में चीजें इधर की उधर कर दो, लेकिन उसका बेस्ट यूज करो, उसका बेस्ट यूज करो। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, सबको सबऑर्डिनेट करो इस तरीके से, सबको कोऑर्डिनेट करो, सबकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करो इस तरीके से कि आप मैक्सिमम फायदा उठा सको, आप मैक्सिमम फायदा उठा सको। फिर यू नीड टू टेक एक्शन टू सॉल्व दैट बॉटल नेक। जिंदगी में प्रॉब्लम पकड़ के कब तक चलोगे मैम? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो ढूंढो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो ढूंढो, राइट? मैम जिंदगी ना बहुत ही आई वुड से नमकीन है, ठीक है? अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। सेम गोज विद द कंपनी कि मैम एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है स्टेप नंबर 4 पे, स्टेप नंबर 5 पे दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, एक और बॉटल नेक आ जाएगा, राइट? तो आपने एक बॉटल नेक जिंदगी में सेव किया, सॉल्व किया, देन आपका दूसरा बॉटल नेक पिक्चर में आ जाएगा। सो दिस इज माई फाइव स्टेप अप्रोच, दिस इज माई फाइव स्टेप अप्रोच। मैम कैन यू गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन इट? आपके एग्जाम्पल बहुत बढ़िया होते हैं, आपके एग्जाम्पल से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है? मैंने कहा चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, आर कंपनी जूते बना रही है, ठीक है? अब ये जूते बनाने में 3 डिविजन्स लग रहे हैं, मटेरियल, प्रिपरेशन, असेंबली और पैकेजिंग, राइट? पहले आप मटेरियल प्रिपेयर करते हो, फिर उन्हें असेंबल करते हो, फिर आप पैकेज करते हो, राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि आपकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 13,000। कितनी है गाइस? 13,000। ओके, नाउ आर हैज आइडेंटिफाइड that purchasing an additional assembly could increase production capacity in assembly division to 19,000. So guys क्या हो रहा है इसमें कि अगर आप देखो अभी तीनों डिपार्टमेंट की ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्या? प्रिपरेशन विल deal with 15,000 units, assembly will deal with 10,000, पैकेजिंग विल डील विद 20,000, डिमांड 13,000 की है। तो गाइस सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ बॉटल नेक क्या है? क्या कौन सा डिपार्टमेंट आपको जिंदगी में रोक देगा कि मैम आप डिमांड मीट नहीं कर पाओगे, आप डिमांड मीट नहीं कर पाओगे? आपकी डिमांड 13,000 है, बट कैन यू सी असेंबली आपको सिर्फ 10,000 यूनिट बना के देगा। तो आप ये 3,000 यूनिट्स की डिमांड नहीं मीट कर पा रहे। किसकी वजह से मीट नहीं कर पा रहे मैम? ये असेंबली की वजह से। ये जो असेंबली है ना, ये सिर्फ 10,000 पे रुक जाएगा, ये इसके आगे नहीं जाएगा। तो दिस इज द बॉटल नेक, दिस इज द बॉटल नेक। मैम शॉर्ट टर्म में कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में हम मशीन खरीद लेंगे और इसकी कैपेसिटी 19,000 कर देंगे, दैट इज द लॉन्ग टर्म, दैट इज द लॉन्ग टर्म। बट शॉर्ट टर्म में बताओ, शॉर्ट टर्म में बताओ। तो गाइस अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप।
स्टेप नंबर 1, यू नीड टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक। तो हमने अभी पिछली डिस्कशन में कर लिया कि मैम ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू टू मीट द 13,000 डिमांड इज द असेंबली डिपार्टमेंट, right? Because it is restricting you to actually do only 10,000 units. Step number 2 is you decide to exploit. That is, you identify कि मैम कैसे मैं अपने रिसोर्सेस को बेस्ट यूटिलाइज करूं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस बॉटल नेक, विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस बॉटल नेक। सो मैं क्या करती हूँ, मैं वो शूज बनाती हूँ जो मेरे प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं तीन तरीके के शूज बना रही हूँ, एक बना रही हूँ लो मिड्स एंड हाई। गाइस आई होप सबको पता है ये नाइकी के लो मिड्स एंड हाइज। अब मुझे पता है कि हाई सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है क्योंकि कॉस्ट कम है और सेलिंग प्राइस इंसेन है, right? So I will be focusing on highs now. Why? I will make sure कि जो 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं ना मेरे असेंबली में वो हाइस की बन रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3, अब मैं जिंदगी में सबको सबऑर्डिनेट करूंगी, एज इन मैं सारे के सारे रिसोर्सेस उस पे फोकस करूंगी जहां मेरा बॉटल नेक है, राइट? तो आई विल मेक श्योर कि मेरे दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हाइस पे फोकस कर रहे हैं। ये नहीं कि मैम दूसरे डिपार्टमेंट लो और मिड्स की तैयारी कर रहे हैं और आपका एक डिपार्टमेंट हाई पे तुला हुआ है। तो नो, यू नीड टू सबऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज, यू नीड टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज इन द कंपनी नाउ। ओके, step number 4, I will elevate. Ma'am, you need to find a solution, you need to eliminate it. How will you eliminate it? देखो शॉर्ट टर्म में तो मैम आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि आपने दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी हाई पे लगा दिया, बट ऐसे थोड़ी ना चलेगा, आपके बिजनेस तीन शूज पे है। नाउ स्टेप नंबर 4, फाइंड द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। व्हाट आई विल ट्राई टू एलिमिनेट, आई विल ट्राई टू एलिमिनेट हाउ? बाय इन्वेस्टिंग इन दैट मशीन। नाउ माई प्रोडक्शन विल गो टू 19,000, नाउ माई प्रोडक्शन विल गो टू 19,000। तो अगर हम इस पे जाए, मैम अब आपने क्या किया, आपने बॉटल नेक आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशन ढूंढा, अब आपकी हो गई 15,000, 19,000 एंड 20,000। सो गाइज व्हाट इज माय नेक्स्ट बॉटल नेक? स्टूडेंट्स विल से मैम मटेरियल डिपार्टमेंट। नो, नाउ माय बॉटल नेक इज माय डिमांड। गाइज अब आप डिमांड कम है और आप प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हो, अब आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे टू इंक्रीज द डिमांड, टू इंक्रीज द डिमांड, क्योंकि आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द डिमांड। सो नाउ you will have to focus how you can increase your demand for more than 13,000, because your maximum production as of now has become 15,000, has become 15,000। let's say आपके क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता, आपका क्वेश्चन ये नहीं कहता डिमांड इतनी है। तो गाइस नाउ दैट यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एबीसी, टेल मी अगर आपका डिमांड 16,000 होता तो आपका नेक्स्ट बॉटलनेक कौन सा होता? मैम ये, because it is producing 10,000 units less, 1,000 units less। तो वही शॉर्ट टर्म में सॉल्यूशन ढूंढती, फिर लॉन्ग टर्म में ढूंढती। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर विद द 5 step approach? Now let's do the question, very easy question, very interesting question, and you should understand it, you should understand it। कहता है कि मैम आपकी डिमांड 500 है, कितनी है? आपकी डिमांड 500 है, फाइन। नाउ आपकी प्रोसेस कैपेसिटी इतनी है, फाइन। लॉन्ग रन में अगर आप सेल्स बढ़ाते हो तो आपको हर एडिशनल यूनिट पे हर हफ्ते 25,000 का फायदा होगा। ओके, नाउ आपके पास तीन ऑल्टरनेटिव है कि आप ए में पैसा इन्वेस्ट करो 1 मिलियन और 550 की कैपेसिटी कर दो, बी में करो और उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, 600 हो जाएगी, या फिर सी में करो, आपकी 300 यूनिट से बढ़ जाएगी कैपेसिटी, इट विल बिकम 550, इट विल बिकम 550, राइट? आपको कौन सा एक्शन चूज करना चाहिए ना? गाइस दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे बताओ आपका बॉटल नेक क्या है? वॉट इज दैट वन थिंग विच विल स्टॉप यू द मोस्ट, स्टॉप यू द मोस्ट कि मैम ये नहीं बढ़ाया तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे? सी, सी। ओके, लेट्स गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी, फर्स्ट ऑप्शन कि मैम आप सी पे फोकस करो, आप सिर्फ सी पे फोकस करो। लेट्स से आप कहते हो आप सी पे पैसा इन्वेस्ट करते हो
और आप 250 से प्रोडक्शन कितनी कर देते हो? 550। कितनी कर देते हो? 550। नाउ योर डिमांड इज व्हाट? 500। ओके, नाउ योर प्रोडक्शन capacity is increasing. How much is it increasing? Ma'am, C will be able to make now 300 additional units. 300 additional units. Everybody got this? Everybody got this? Okay. Ma'am, लेकिन एक बात बताओ, देखो गाइस, इसे ना थोड़ा सा मैं वाइट पेज पे करती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। देखो क्या हो रहा है, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं सो दैट पूरा क्वेश्चन आ जाए। फाइन। करंट कैपेसिटी क्या है? करंट कैपेसिटी है ए बी सी की 400 यूनिट, 300 यूनिट और 250 यूनिट। ठीक है, आपकी डिमांड 500 है। फाइन, एवरीबडी गॉट दिस। नाउ बॉटल नेक क्या है आपका? 250। बॉटल नेक क्या है आपका? 250, दैट इज सी। तो मैम पहले तो ऑप्शन 3 पे देखते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्शन 250 से 300 और बढ़ा दूं तो आपकी 550 हो जाएगी, आपकी 550 हो जाएगी। राइट? एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर विद दिस? ओके, नाउ गाइस टेल मी हाउ मच यूनिट्स यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम। मैम अब अगर आप नया सिनेरियो देखो तो नया सिनेरियो है 400, 300, 550। डिमांड आपकी कितनी है? 500। नाउ द मैक्सिमम प्रोडक्शन दैट यू विल बी एबल टू डू इज 300 because B will restrict you. B will restrict you. Right? ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो मैम आपको B को सॉल्व करना भी पड़ेगा। फाइन। तो गाइस नाउ द सॉल्यूशन इज A B C. Let's say you have worked upon C. Now you will be working upon 2. ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों लेते हो। राइट? 3 में आपने ये लिया, अब 2। टू सेकेंड ऑप्शन क्या था कि आप बी की कैपेसिटी डबल कर दो। तो मैम आप कर दो 400, 600, 550। नाउ योर डिमांड इज 500, मैक्सिमम प्रोडक्शन इज 400। स्टिल यू आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड। व्हाई? बिकॉज ए इज रिस्ट्रिक्टिंग यू नाउ। ए इज रिस्ट्रिक्टिंग यू नाउ। ओके, सो मैम आपको तीनों ऑप्शंस करने पड़ेंगे। ओके, सो दैट आप देखो अब सिनेरियो क्या है। अब सिनेरियो ये है। अब मैं क्या करूंगी? ऑप्शन तीनों लेती हूँ, ऑप्शन 1 2 3 तीनों लेती हूँ। तो गाइस अब मेरी क्या हो जाएगी? 500, 600, 550। नाउ माई डिमांड इज 500 एंड आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस 500। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी? सो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि मैम यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन ऑल थ्री, देन ओनली यू विल बी एबल टू मीट, देन ओनली यू विल बी एबल टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ मैम थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं। कैसे? अब देखो अगर आप ये तीनों ऑप्शन में जाते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है? ए बी सी। टोटल कॉस्ट इज 1 मिलियन, 1.5 मिलियन एंड 2 मिलियन। तो 2 3 4, अगर मैं देखूं तो इट इज कॉस्टिंग मी 4.5 मिलियन। इट इज कॉस्टिंग मी, इतना ही हो रहा है ना? कॉस्ट वुड बी 1 मिलियन, 2 मिलियन एंड 1.3 मिलियन। तो 2 3 4, हाँ 2 3 4, 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन। अब मैम अगर आप बेनिफिट देखो, अगर आप बेनिफिट देखो, कॉस्ट आ गई आपकी 4.5 मिलियन। बेनिफिट, बेनिफिट क्या हो रहा है कि मैम एक बात बताओ, आपकी जो कैपेसिटी है वो 550 पे पहुंच गई। लेट्स से जो मेरी न्यू कैपेसिटी है वो अब कितने पे आ गई? मैम ये 550 पे आ गई है, ये 600 पे आ गई है और ये भी 550 पे आ गई है, ये भी 550 पे आ गई है। सो ओवरऑल, ओवरऑल कैन आई से माय particular capacity has increased by 250 units. Why? Because ma'am your demand is 500, so the maximum you would like to increase is still 500 so that you are able to meet the demand of 500. So I have moved from 250 to 500. Can I say I am getting an additional benefit of 250 units?
250 यूनिट्स, ओके। सो 250 यूनिट्स का फायदा मिल रहा है और एक यूनिट पे 25,000 का फायदा होता है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, 250 into 25,000, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6250,000 माइनस 450,000, ओके, माइनस 450,000, ओके। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.75 मिलियन का नेट बेनिफिट, 1.75 मिलियन का नेट बेनिफिट। तो मैंने क्या कोर्स चूज किया, that I will go with all three machines. I will go with all three machines. Everybody clear? Everybody clear with this illustration? Guys, any doubts? Any doubts with this question? Okay. Now let's go to the next slide. Now let's go to the next question. Now let's go to the next question. So guys, अब जो next question आने वाला है आपको, उसमें आपका पेपर में मतलब स्टडी टेक्स्ट में बहुत ही चीजें स्यापेदार की हुई है, बट हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे, हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहता है, हार्ट हैज रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट ऑफ $120, अकाउंटिंग पीरियड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, contribution upon sales is 75%, marginal cost is 10% of sales value, fixed cost is 3 lakh, right? Everybody understood? Okay. Now, सिंपल, अगर आपको एमए थोड़ा सा भी याद है, सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट निकालूंगी, प्रॉफिट आएगा, राइट? प्रॉफिट मुझे क्या दिया हुआ है, 1,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है, 3 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 4,20,000। क्या हमने ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन यूज करके कंट्रीब्यूशन निकाल लिया? निकाल लिया मैम। कंट्रीब्यूशन कितना आया, 4,20,000। अब मुझे दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज इक्वल टू 75%, ओके। कंट्रीब्यूशन क्या है, 4,20,000। सेल्स को कितना मान लू, एक्स, ये है मेरा 75%। तो मेरा एक्स कितना आ गया, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 75%। तो गाइज दिस विल कम आउट टू बी योर 5,60,000। दिस विल कम आउट टू बी योर 5,60,000। तो एक्स आ गया आपका 5,60,000। एक्स क्या था, आपकी सेल्स थी, ओके। नाउ थ्रूपुट निकालना है। थ्रूपुट का फॉर्मूला मुझे पता है, सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट। सेल्स मेरी 5,60,000 है, मटेरियल कॉस्ट के लिए उन्होंने बोला कि इट इज 10% ऑफ द सेल्स वैल्यू, मतलब 10% ऑफ 5,60,000 विच इज 56,000। तो थ्रूपुट आपका कितना आ गया, 504,000. Clear? Okay. Now let's go to the ratios. We have certain ratios when it comes to throughput accounting. Guys, प्लीज प्लीज ये रेशियोज अच्छे से कर लेना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, प्लीज इससे ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले जो ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, इसमें आप कोई भी नॉन प्रोडक्शन खर्चा नहीं डालोगे, राइट? इट इज सिंपली द प्रोडक्शन एंड द फैक्ट्री कॉस्ट, ओके। सो अगर आपको क्वेश्चन में मार्केटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, प्लीज डू नॉट इंक्लूड इन द फैक्ट्री कॉस्ट, प्लीज डू नॉट इंक्लूड इन द फैक्ट्री कॉस्ट, राइट? सबसे पहले तो ये बात समझो। अब एक चीज समझाती हूँ, उसे थोड़ा ध्यान से समझना, कि अगर अमूल है, ठीक है, अमूल आपकी दो चॉकलेट्स बना रहा है एक ही फैक्ट्री में, क्या, एक ही फैक्ट्री में, राइट? अमूल कहता है एक चॉकलेट है और एक केसरी है, दो तरीके के दूध बन रहे हैं। अब अगर आपको डिसीजन लेना है कि मैम कौन सा बेटर है, कौन सा बॉटल नेक, तो बॉटल नेक तो है, राइट? सबसे बेटर कौन सा है, चॉकलेट बनाओ केसरी बनाओ, यू विल कैलकुलेट रिटर्न पर आवर, ओके, if it is a same factory. But let's say you have Tata ki factory, one is in Himachal, one is in Delhi, then you will compare TPAR. Then you will compare TPAR. You will not compare return per hour. Why? Because you will have to consider the cost. You will have to consider the cost per factory. Okay.
एवरीबडी क्लियर? तो वहां पे आपको कॉस्ट पर फैक्ट्री आर निकालना पड़ेगा, देन आपको टीपीआर निकालना पड़ेगा। सो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, आर यू डीलिंग विद द सेम लाइन और आर यू डीलिंग विद द डिफरेंट लाइंस? एवरीबडी क्लियर विद द सेकेंड पॉइंट? नाउ अगर आपका टीपीएआर 1 से ज्यादा आता है, यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स। एंड अगर आपका टीपीआर 1 से लो आता है तो आप लॉस कर रहे हो। मैम ये याद कैसे रखेंगे? गाइस सिंपल फॉर्मूला, अगर दो सिचुएशन लेती हूँ, आपका एक रिटर्न है 6, आपकी कॉस्ट है 5, ठीक है? आपका रिटर्न है 5, आपकी कॉस्ट है 6। जरा टीपीआर निकालना, यहाँ पे कितना आएगा? 6/5 एंड 5/6। तो अगर 5/6 करोगे 0.83 आएगा, एंड यहाँ कितना आएगा? 1.2। तो सिंपल सी बात है कि मैम अगर आपका टीपीएआर 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब आपका रिटर्न ज्यादा है, मतलब आप पैसा बना रहे हो, राइट? बट अगर आपका टीपीआर 1 से बिलो आ रहा है, मतलब आपका रिटर्न कम है, मतलब आप पैसे खो रहे हो, पैसे खो रहे हो, दैट इज यू आर लॉस मेकिंग। बच्चे ये रटने की समझते हैं कि हम रट लेंगे, बट लॉजिकली देखो ना, सिंपल कुछ भी फिगर्स लेके देखो एंड ये पढ़ना सीखो। रिटर्न पर फैक्ट्री आर, रिटर्न की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, राइट? प्लीज गाइज अंडरस्टैंड द टर्म्स दे आर यूजिंग। कॉस्ट पर फैक्ट्री आर, थ्रूपुट रिटर्न पर फैक्ट्री आर। सो जब आप इसे निकालोगे, नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड करने पड़ेंगे अगर आपका वो बॉटलनेक टाइम है, ठीक है? तो दैट इज थ्रूपुट, दैट इज रिटर्न। थ्रूपुट पर यूनिट हमें आता है सेल्स माइनस material cost, right? So that is how you have to read each and every ratio. Now interpretation, I just told you, if it is more than 1 then you are profit making, if it is less than 1 you are loss making. Decision making mein I told you, if you are dealing with the same product line, calculate the return per hour, but if you are calculating in the different factories, then you need to compare the TPR, then you need to compare the TPR. Everybody clear? Everybody clear? Okay. Now you have criticism of TPR, that is certain drawbacks when it comes to calculating TPR. First of all, it only focuses on short term. टीपीआर अज्यूम करता है कि आपकी जो रिसोर्सेस है, आपकी जो अदर कॉस्ट है, राइट, वो फिक्स्ड है शॉर्ट टर्म में, वो फिक्स है शॉर्ट टर्म में। बट इट एक्चुअली इग्नोर्स, मैम व्हाट इफ ज्यादा का फायदा, व्हाट इफ वी हायर मोर पीपल, व्हाट इफ वी इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें आपका टीपीएआर कंसिडर ही नहीं करता है। इट ओनली फोकसेस ऑन द शॉर्ट टर्म, इट ओनली फोकसेस ऑन द शॉर्ट टर्म। एवरीबडी अंडरस्टूड? एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके। देन बिजनेस शुड कंसिडर द लॉन्ग टर्म रिव्यू। अब अगर आप सिर्फ टीपीएआर क्या देख के कि भाई इट इज लेस देन 1 चलो रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं, you cannot make big decisions in the long term just considering कि मैम आपका टीपीआर 1 से लो है। फॉर एग्जाम्पल, आप ममा अर्थ को जानते हैं, राइट? ममा अर्थ का नया प्रोडक्ट आया, लेट्स से विटामिन सी फेस वॉश। अब इनिशियली उसका मार्केटिंग स्पेंड बहुत ज्यादा था, ड्यू टू विच उसका टीपीआर 1 से कम आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म में वो कंपनी को बहुत फायदा दे रहा है। सो आप बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू में चले जाते हो व्हेन यू आर कंसिडरिंग द TPR. Then ABC. So guys, when it comes to long-term perspective, of course, activity-based costing is more appropriate for the long-term decision and TPR is better for the short-term decisions. Everybody clear? Everybody clear with this? Any doubts with respect to this? Then we'll go to TYU 3 if you guys are ready for the same. Okay. So guys, TYU 3 is very easy. Just 1 second TYU. X Limited manufacture a product that requires 1.4 hours of machining. Machine time is the bottleneck resource due to the limited number of machines available. There are 10 machines available and each machine has 40 hours per week. 40 hours per week. Okay. So the maximum number of time, the maximum time we have is 10 into 40, that is 400 hours. Okay. Let's make my life easier. The product is sold at 85. Material cost is 42.50. Throughput सामने सामने दिखता हुआ लग रहा है मुझे। Total factory cost is 8,000. क्यों दिया होगा? कॉस्ट पर फैक्ट्री आर निकालने के लिए, राइट?
सबसे पहले इन्होंने बोला रिटर्न पर फैक्ट्री आवर निकालो। रिटर्न क्या है गाइस? रिटर्न क्या होता है? थ्रूपुट। पर फैक्ट्री आवर मतलब आवर्स। मैम आवर्स। पर यूनिट लिखो या टोटल आवर्स लिखो? मैम पर यूनिट लिखो। क्या लिखो? पर यूनिट। ठीक है। थ्रूपुट कैसे निकालते हैं मैम? सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, दैट इज 85 माइनस 42.50। मैम पर आवर। पर आवर एक यूनिट कितना टाइम ले रही है? 1.5 घंटा। कितना ले रही है? 1.5 घंटा डिवाइडेड बाय 1.5। सो दिस विल कम आउट टू बी 28.33। 28.33। ओके। मैम टीपीआर निकालना है। टीपीआर मैम आपने अभी बताया था, कॉस्ट पर फैक्ट्री आर डिवाइडेड बाय, मैं भी भूल गई क्या था। हाँ, रिटर्न डिवाइडेड बाय कॉस्ट। क्या था? ऐसे याद रखो, रिटर्न डिवाइडेड बाय कॉस्ट। अब रिटर्न तो मैम आपने निकाल लिया, ये रहा। आपको क्या निकालना है? कॉस्ट। कैसे निकालोगे? कॉस्ट पर फैक्ट्री आर। बोलना सीखो गाइस, जितना बोलोगे उतना बेटर है। कॉस्ट पर फैक्ट्री आर्स। ओके। टोटल कॉस्ट कंसिडर कर रही हूं मैं न्यूमिनेटर में, तो नीचे मैं पर यूनिट लू या टोटल लू? मैम टोटल लोगे ना, लाइक वाइज, राइट? तो दैट वुड बी 4000। 40 इंटू 10, सॉरी 400 इंटू 400, कितना आ गया? 20। तो मैम आपका रिटर्न कितना आया था? 28.33। आपका कॉस्ट कितना आया? 20। टीपीआर कितना आ गया? 1.41। वन से ज्यादा है, वन से कम है? वन से ज्यादा है। प्रॉफिटेबल होगा, लॉस मेकिंग होगा? प्रॉफिटेबल होगा। क्यों? क्योंकि यू आर अर्निंग मोर, दैट इज योर रिटर्न्स इज मोर देन दी कॉस्ट। योर रिटर्न्स इज मोर देन दी कॉस्ट। ओके, एवरीबडी क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन एंड यू विल गेट इट वेरी इजली। गाइस ये बहुत इजी है, क्या मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूं ये क्वेश्चन? नहीं मैम नहीं, आप ही करवा दो। ओके। टीपीआर कैसे निकालते हैं? रिटर्न बाय कॉस्ट। रिटर्न कैसे निकालेंगे मैम? रिटर्न निकलता है थ्रूपुट। अब पर यूनिट लेते हो तो टाइम भी आपको पर यूनिट, आर पर यूनिट लेना पड़ता है। कॉस्ट पर फैक्ट्री आर, ऊपर टोटल कॉस्ट लेते हो तो नीचे टोटल आर्स लेने पड़ते हैं। तो मैम ठीक है, सबसे पहले रिटर्न निकालते हैं। रिटर्न कैसे निकलता है मैम? थ्रूपुट डिवाइडेड बाय पर यूनिट। थ्रूपुट कैसे निकलता है मैम? सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज 10, मटेरियल कॉस्ट इज 3। मैम पर यूनिट, एक यूनिट को कितने घंटे लग रहे हैं? 2 आवर्स। तो गाइस 7/2 कितना आ गया? 3.5। तो सबसे पहले आपका रिटर्न, दैट इज न्यूमिनेटर 3.5 आ गया। मैम नीचे कॉस्ट पर फैक्ट्री आर, ठीक है? तो मैम कॉस्ट, ऊपर टोटल कॉस्ट लेनी है, दैट इज 50,000। मैम ऊपर टोटल ले रहे हो तो नीचे पर यूनिट ले लोगे क्या? नहीं, टोटल लूंगी, दैट इज 20,000। दैट विल बिकम 2.50। मैम निकाल दो रिटर्न बाय कॉस्ट। रिटर्न बाय कॉस्ट, दिस विल कम आउट टू बी 1.40। रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है? मैम रिटर्न ज्यादा है। प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे? प्रॉफिट करोगे। तो मैम टीपीआर 1 से ज्यादा ही आया है। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? ओके। मैम हाउ कैन यू इंक्रीज टीपीआर? गाइस सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया। रिटर्न बाय कॉस्ट है। रिटर्न दो चीजों पर है, किस पे? थ्रूपुट डिवाइडेड बाय आर पर यूनिट। राइट? एवरीबडी क्लियर? कॉस्ट किस पे थी? टोटल कॉस्ट एंड टोटल आवर्स। तो मैम कैसे बढ़ाओगे टीपीआर? सिंपल सी बात है, थ्रूपुट इंक्रीज करो, आर पर ये डिक्रीज करो। टोटल कॉस्ट जो आपकी फैक्ट्री में थी उसे क्या करो? रिड्यूस करो, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में बैठे हो, आप डिनोमिनेटर में बैठे हो, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली असेस द सिंपल थिंग्स। अब अगर आपको थ्रूपुट इंक्रीज करना है, सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट है, हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज करो, इसे डिक्रीज करो। सिम ओके। सो द सॉल्यूशंस दैट यू हैव इज increase selling price, reduce material cost, reduce operating expenses, because आपका डिनोमिनेटर में है ना कॉस्ट, तो जितना डिनोमिनेटर कम करोगे उतना आपका टीपीआर बढ़ेगा। improve the productivity, simple। everybody understood? very simple। okay, now comes the interesting part and the last part for this particular video, multiple product decision making। guys ये टीवायू करने में मेरा थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा था एंड बहुत इंटरेस्टिंग टीवायू है। इसे करने में मजा भी बहुत आया था, राइट? तो इसे ना थोड़ा समझना पड़ेगा एंड इसके स्टेप्स थोड़े से अलग है, थोड़े से अलग है। क्या होता है
throughput accounting can actually be applied to multiple production. When you are making different units, when you are actually producing different units, तो इसकी भी 5 स्टेप अप्रोच है, बट इसकी 5 स्टेप अप्रोच थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ी सी अलग है, राइट। अब ये क्या कहता है कि मैम आप ना आइडेंटिफाई करो, ठीक है, सबका थ्रूपुट निकालो, एंड थ्रूपुट पर यूनिट बॉटलनेक रिसोर्स, मतलब डिवाइडेड बाय आवर्स, डिवाइडेड बाय मशीन टाइम, डिवाइडेड बाय लेबर टाइम, जो भी आपका थ्रूपुट है उस क्वेश्चन में, जो भी आपका बॉटलनेक है उस क्वेश्चन में, फिर आप रैंक करो। दैट इज द न्यू स्टेप, दैट यू रैंक इट, ठीक है, एंड देन यू एलोकेट इट। मैम ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा, प्लीज क्वेश्चन करके हमें समझा पाएंगे तो हमारे लिए जिंदगी थोड़ी बेटर हो जाएगी, तो हमारे लिए जिंदगी थोड़ी बेटर हो जाएगी। So guys, give me a second. I'll copy paste this in an Excel file so that we are able to solve it in much better manner. फाइन। आपका जो TYU 5 है, दैट वुड बी योर होमवर्क। आई विल नॉट बी डूइंग TYU 5, दैट इज वेरी इजी। ओके, अगर आपको क्वेश्चंस कंसेप्ट समझ में आया तो आपको फिर कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, वो बहुत इजीली हो जाएगा, वो बहुत इजीली हो जाएगा। ओके। ओके सो गाइज, मेरे साथ अभी बहुत बुरा हुआ कि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी थी, तो अब मुझे पूरा क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से करते हैं। देखो क्या कहता है, मल्टीपल प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग, मल्टीपल प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमने क्या सीखा था कि मैम आप आइडेंटिफाई करो बॉटलनेक, राइट, आइडेंटिफाई द बॉटलनेक। तो हमारे क्वेश्चन में बॉटलनेक क्या दिया हुआ है, मशीन टाइम, क्या दिया हुआ है, मशीन टाइम इज आर बॉटलनेक रिसोर्स। ओके, कितना बॉटल नेक है, मतलब मैक्सिमम टाइम दैट यू हैव इज 400 hours. So guys, in order to make my life easier, I am going to convert it into minutes so that मुझे पता चले कि मेरे पास कितने मिनट्स हैं, राइट। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है दैट यू कैलकुलेट थ्रू पुट पर यूनिट, थ्रूपुट पर यूनिट। अब थ्रूपुट पर यूनिट कैसे निकलता है, आई होप सबको पता है। थ्रूपुट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट। तो ABCD। ओके, सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 1.40, 0.80, 1.20 एंड 2.80। ओके, मटेरियल कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है, 0.60, 0.30, 0.601। थ्रूपुट पूरा पूरा लिखना, तभी समझ में आएगा आगे जाके। थ्रूपुट पर यूनिट कितना हो गया, दिस माइनस दिस, दिस, ठीक है, ये आ गया आपका थ्रूपुट पर यूनिट। ओके फाइन। स्टेप नंबर 3 कहता है कि आप निकालो थ्रूपुट पर बॉटल नेक resource. Okay, now what is my bottleneck? My bottleneck is machine time. For one unit, it is given. I will take 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 6 minutes. Okay. तो थ्रूपुट पर bottleneck resource आपका अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने निकालू, सिंपल कितना आएगा, थ्रूपुट डिनोम न्यूमिनेटर में आएगा, क्योंकि आई एम सेइंग थ्रूपुट पर bottleneck resource, तो उसे बोलना सीखो, पर मिनट, ठीक है। ये आ गया आपका जे। ओके, सो दिस इज माय थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर 4 कहता है मैम रैंक देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, रैंक देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आई विल गिव अ रैंक टू इट। सबसे पहले फर्स्ट, देन ये तो गाइस सिंपल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। स्टेप नंबर 5 कहता है स्टार्ट एलोकेटिंग द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस एलोकेट करने का मतलब है मैम डी, आपने बोला डी बनाना है, यूनिट्स, राइट, मिनट्स, तो टोटल टाइम कितना रहा रिमेनिंग, देन हम थ्रूपुट निकालेंगे, देन हम टोटल थ्रूपुट निकालेंगे। मतलब मैम डी बनाओ, सबसे पहले आपने डी को रैंकिंग दिया ना, कितनी बनानी है डी की यूनिट, 1500। एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट। टोटल टाइम कितना, इतना। तो मैम आपके पास टोटल टाइम कितना है, कितना मशीन आवर्स है, 24,000।
24,000 में से आपने 9,000 यूज कर लिए, बचे सिर्फ 15,000। थ्रूपुट पर यूनिट, थ्रूपुट पर यूनिट, मैम कितना डी 1.8, कितनी यूनिट्स बनाई है आपने 1500। तो टोटल थ्रूपुट आपने कित सॉरी, थ्रूपुट पर यूनिट है आपका 1.8, तो टोटल थ्रूपुट हो गया 1.8 इंटू 1.1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स। क्या सबको ये समझ में आया मैंने क्या किया? सो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग टोटल प्रॉफिट एंड टाइम कितना कितना यूज होता जा रहा है। सेकेंड रैंकिंग किसे दी है मैंने? बी को। मैम बनाओ बी, कितने? 2,000 यूनिट्स बनानी है ना, एक यूनिट को बनाने में लगता है दो, टोटल टाइम 4,000, रिमेनिंग कितना रहा? 15,000 में से 4,000 और यूज कर लो। थ्रूपुट पर यूनिट क्या है बी का? इतना। एंड सेम गोज विथ दिस। देन मैम बनाओ थर्ड जो आपने रैंक करा है सी, कितना? 250 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने में 3 मिनट लग रहा है, टोटल टाइम 7,500, रिमेनिंग कितना बचा 11,000 में से जे। थ्रूपुट कितना है? 0.6, तो टोटल थ्रूपुट इतना हो गया। अब मैम अगर आप ए सारी यूनिट्स बनाने जाओगे तो आपका कितना टाइम लगेगा? 2,000 into 5, that is 10,000. Do you have 10,000 minutes remaining? No, you have only 3,500 units remaining. So you will have to utilize this 3,500. Let's see how many units you are able to make. 700 यूनिट्स। कितनी बना पा रहे हो आप? सिर्फ 700 यूनिट्स ही आप बना पाओगे। ठीक है, कितने मिनट लगे आपको एक यूनिट बनाने में? 5। टोटल टाइम एंड ऑल निकालने की जरूरत नहीं है अब। थ्रूपुट कितना है आपका? 0.8, टोटल आ गया ये। तो अगर मैं देखूं टोटल थ्रूपुट इज नथिंग बट सम ऑफ दिस, दैट इज टोटल प्रॉफिट, नॉट सॉरी टोटल थ्रूपुट, एक्सपेंसेस माइनस करो 5,440, so your profit will come out to be this 320. Everybody got it? Everybody got it? Okay, so that's it for this particular video. And when you go back home, please make sure that you solve, TYU 5. And when it comes to the service industry, it's exactly the same. There is no thing that you have to learn exceptionally for, service industry. It's very same. It's very similar. So yeah, that's it for this particular chapter. And we'll meet in part number 3. Bye bye. Take care. All the best.